Good morning to all. Good morning, sir. Good morning, sir. Today I am going to discuss the solution of the internal paper. Okay, so we are discussing that in this lecture. So you can verify your answer and we can discuss if you have any doubt. Okay, so first question number 1, it is related to your MCQ. So what is the answer of first one? The value of Laplace transform e raised to 3t plus 3 is क्या होगा? यहाँ पे हाईलाइट किया, ऐसा ही मतलब नहीं है कि सही है, गलत भी हो सकता है. क्या है? e raised to 3 divided by s minus 1. लेकिन how we can calculate it? या फिर तुक्का लगाए, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? Yes, very good. So you can see here how we can go with that. Laplace transform e raised to 3t plus 3 is equal to Laplace transform e raised to 3t into e raised to 3. E raised to 3 is the constant, so we can common it and into Laplace transform e raised to 3t. And what is the Laplace transform e raised to 3t? It is 1 upon s minus 3. Okay, so your answer B is correct. Okay, everybody? Online mein, is it okay? Yes, sir. Then next question is Laplace inverse of 1 upon s minus a whole square. So how we can find it? Anybody? MCQ number 2. How we go with the MCQ number 2? कैसे जाएंगे? Any idea? आप लोगों ने कौन सा आंसर लिखा है? B. Okay, मेजोरिटी B है. Okay, लेकिन कैसे आया? First shifting theorem, very good. Okay, so first shifting theorem, so you can see here, yes, Laplace inverse of 1 upon s plus a whole square, we want to find out this. So e raised to minus at, that means here s is replaced by s plus a. So as per the first shifting theorem, you have to common it e raised to minus 80. Okay, so e raised to minus 80 is outside, and then Laplace inverse of original fs, that means 1 upon s square. So 1 upon s square किसका हो गया Laplace inverse? t का. So t into e raised to minus 80 is your correct answer and your option is B. Okay, everybody, यही लिखा है. लास्ट वाले दोनों आगे. Yes, sir. लास्ट वाले दोनों आगे. आप ही हो लास्ट. पीछे देख रहा है. Okay, then number 3, Laplace transform t raised to minus 1 by 2 is, क्या लिखा है इसमें? रूट पाई बाय s. आपने क्या लिखा है? डेबिट किया पाई बाय 5, ये वाला फर्स्ट वाला. ओके, गलत. एनीबॉडी? ये क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है इसमें. ओके, सो आई टॉक विद योगेश्वरी मैम, है ना. तो यहाँ पे इसका आंसर इस तरीके से आता है, रूट पाई बाय s. ओके, हाउ? सो यू कैन सी हियर Laplace transform t raised to minus 1 by 2 is nothing but gamma n plus 1 divided by s raised to n plus 1 यूज करेंगे. So gamma minus 1 by 2 plus 1 divided by s raised to minus 1 by 2 plus 1. Okay, so here gamma 1 by 2 divided by s raised to positive 1 by 2. So if you go with this square root form, then gamma 1 by 2 is nothing but root pi. So root pi divided by root s. So final answer is root pi by s. It is not in our option. So I talk with her and I try to give you 1 marks credit. Okay. Okay. Then next one, fourth. What is the answer? ऑनलाइन में क्या लिखा है? चलो बताओ तो. 0, सर. 0. ओके, सभी ने 0 लिखा है.
विजय? Sir. Yes, sir. Okay, so your answer is correct, but how we get it? So you can see here, phi of xyz is equal to 2x square minus 3y square plus 4z square. So we want to find the curl of grade of phi. Okay, curl of grade of phi, but before that we want to find grade of phi. We have to find, okay, so grade of phi क्या होगा? The definition of grade of phi means del phi by del x I plus del phi by del y j plus del phi by del z. Okay, if you find out this, then you will get 4xi minus 6yj plus 8zk. And then curl means determinant ijk del by del x del by del y del by del z. So 4x minus 6y 8z. If you solve this, then you will get your zero vector. So your option is A. Correct option is A. Okay, so you can see your correct option is A. Is it okay everybody? किसी को डाउट है? सही है, ओके। No, sir. ओके, नंबर 5 में बताओ आप लोगों ने क्या लिखा है? सही बताना, क्या लिखा है? Zero, sir. जीरो सही है। कैसे आता है? डाइवर्जेंस फाइंड करना है। ओके, सो गिवन वेक्टर इज v bar is equal to y square I plus z square j plus x square k. ओके, तो यहाँ पे आपका v bar है ना। Now if you go for the divergence of v bar, then del into v bar, that is del v1 by del x plus del v2 by del y del v3 by del z. Now substitute the component x component, y component and z component here. So you will get del by del x of y square 0, del by del y of z square 0, del by del z of x square 0, because cross variables are there. Okay, x है तो y square है ना, यहाँ पे with respect to y तो z square, तो cross है, that means 0, constant हो जाते हैं सभी. So answer is D. Correct answer is D. Yes, D1 is 0. Okay. Now number 6. How we can calculate A? सर ग्रेडियंट फाइंड करते और उसका इक्वल टू में 0 लेने देते क्योंकि सोलेनोइडल है. ओके, ग्रेडियंट सोलेनोइडल देता है या डाइवर्जेंस? सॉरी सर, डाइवर्जेंस. यस, क्योंकि ग्रेडियंट का फाइंड कर सकते हैं जब गिवन जो भी आपको दिया है डेटा, उसमें क्या होना चाहिए? स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए, स्केलर पोटेंशियल मींस स्केलर फंक्शन होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे हमारा वेक्टर है, एंड वेक्टर एंड सोलेनोइडल, और ऑलवेज सोलेनोइडल की डेफिनेशन होता है डेल इनटू वी बार, ओके, इज इक्वल टू 0. देन यू कैन से दैट इट इज द सोलेनोइडल. हमने स्टडी किया था ना. ओके, तो सोलेनोइडल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है. So v bar is equal to x plus 3yi plus y minus 2zj plus x minus azk. So you have this divergence of v bar is equal to 0. Now replace the definition of v bar in left hand side. So del v1 by del x plus del v2 by del y del v3 by del z. Here you have the 0. So del v1 by del x means this is your v1, this is your v2 and this is your v3. So if you find the first differentiation with respect to x of first component, then you will get 1 plus 0 to 1. Second क्या करेंगे with respect to y, तो 1 minus 0, so 1. And यहाँ पे x का 0, क्योंकि with respect to z करना है, 0 minus a. So you have 2 minus a is equal to 0, so a is equal to 2. So your correct option is C. Okay, C आ गया. Okay, so how many your MCQ is correct? 6. 4, sir. 4. Okay, और ये तो आपको मुफ्त में मिलने वाला है ना, फ्री में. जिसने अटेंड किया होगा उसको मिलेगा, है ना. Okay, next question number 2A. This is your question number 2A. So first is state first shifting theorem. आप ये चीज भूल जाते हो, कभी देखते नहीं हो कि ये साइड में क्या पूछा गया है. इसका भी 1 मार्क्स होता है. तो यहाँ पे ये पहले लिखना पड़ेगा आपको. What is the first shifting theorem? लिखा है? नहीं लिखा है ना, मुझे पता है. ज्यादातर बच्चे यही भूल जाते हैं, सिर्फ इसके ऊपर फोकस कर देते हैं. लेकिन यहाँ पे कुछ आगे पीछे कुछ होता है ना, कभी डिफाइन करके पूछा लिखा है सर.
Yes. Okay. So keep in your mind. So first shifting theorem you can see on your screen. If Laplace transform f of t is equal to f of s, then Laplace transform e raised to at into f of t is equal to Laplace transform f of t s tends to s minus a, and it is nothing but our f s minus a also. So this is your first shifting theorem. Okay. Now second part of the question, find the Laplace transform of cos 2t sin t divided by e raised to t. कैसे करेंगे चलो बताओ, किसी ने तो किया होगा ना, स्टार्ट कैसे करेंगे? सर cos 2t upon e raised to t, उसको हम 1 by cos 2t upon e raised to 2t का पहले करेंगे, उसके बाद into sin t कर देंगे। बहुत डिफिकल्ट बना रहे हो आप, इसको तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे किया है ताकि कोई cos 2t into sin t f of t ले लेंगे, cos 2t into sin t f of t ले f लेंगे। of t ले लेंगे, यस, then f of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, वेरी गुड। फिर वो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। ओके, सो योर स्टेप्स आर वेरी करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t sin t divided by e raised to t। So first you have to think about this formula, 2 cos a sin b, क्या होता है sin a plus b minus sin a minus b। Is it okay? Is this correct? Everybody? यहाँ तो ऑफलाइन में तो बोल रहे हैं, ऑनलाइन वाले ये करेक्ट है? Yes, sir. यस सर। ओके, सो फर्स्ट आई गो विद दैट। देखो इसका मैं पहले यूज करूंगा। सो अब e रेस टू t है, उसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं तो e रेस टू माइनस t होगा। सो e रेस टू माइनस t cos 2t into sin t। अब यहाँ पे मेरे पास 2 नहीं है, सो आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, सो आई एडजस्ट इट, है ना। सो 1/2 लाप्लास ऑफ 2 e रेस टू माइनस t cos 2t sin t। सो यहाँ पे 2 यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया। नाउ आई फोकस ऑन this function, okay, 2 into cos 2t into sin t। So Laplace of 2 cos 2t sin t is equal to Laplace of sin 3t minus sin t। कैसे आया? a plus b that means 2t plus t, 3t, 2t minus t that means t। अब इसके इंडिविजुअल ऑपरेट कर सकते हैं, लिनियरिटी प्रॉपर्टी। So Laplace transform of sin 3t minus Laplace transform of sin t। So what is the formula for Laplace transform of sin 3t? 3 upon s स्क्वायर प्लस 9 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of t। नाउ वी कैन यूज द फर्स्ट शिफ्टिंग। सो अगर e रेज़ टू माइनस t आप साथ में लेते हो तो 1/2 तो मेरा था ही, लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू माइनस t इनटू दिस वन। सो क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो f of t है उसमें मुझे s की जगह पे क्या करना पड़ेगा s माइनस ए, लेकिन a की जगह पे मेरे पास है -1, s प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे s टेंस टू s प्लस 1 करना है। तो जो भी इसका आंसर आया है मेरे ऊपर उसमें मैं s की जगह पे s प्लस 1 करके रख दूंगा। दैट मीन्स 1/2 3 डिवाइड बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 9। सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी? यहाँ पे है किसी को? चलो बताओ ऑनलाइन में, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No doubt, sir. No, sir. Okay, so this is the way to solve that question. Okay, now second one, find the Laplace transform of this one, f of t is equal to 1 when 0 less than t less than 1, e raised to t when 1 less than t less than 4 and 0 when t greater than 4। कैसे किया इसको? सर इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt। Very good, very good। Okay, so this will be solved by direct Laplace formula, है ना। Laplace ट्रांसफॉर्म f of t is equal to क्या होता है 0 to infinity f of t e raised to minus st dt। Very easy example, okay, ये बहुत easy है।
सिर्फ इंटरप्रिटेशन निकालना था। सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस वन। सो यहाँ पे मैंने लाप्लास की फॉर्मूला से स्टार्ट किया। ओके, सो यहाँ पे देखो 0 टू इंफिनिटी को 3 इंटरवल में स्प्लिट किया है। कौन कौन से? 0 टू 1, 1 टू 4 एंड 4 टू इंफिनिटी। सो 0 टू 1 में मेरा एफ ऑफ टी हो जाएगा 1, सो 1 इंटू ई रेज टू माइनस एस टी डी टी। 1 टू 4 में e रेज टू t, so e raised to t into e raised to minus st dt, and last one is 0 into e raised to minus st dt. अब 0 to 1 e raised to minus st dt बाकी बचा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e raised to minus st upon minus s, because we integrate with respect to t. Okay, and 0 to 1 is that. प्लस अब यहाँ पे देखो e raised to t into e raised to minus st को क्लब कर सकता हो कि नहीं, मर्ज कर सकता हो कि नहीं? How we can merge it? It is nothing but e raised to 1 minus s into t. तो 1 minus s into t का इंटीग्रेशन क्या होगा? So e raised to 1 minus s into t divided by 1 minus s, and limit will be 1 to 4. तो यहाँ पे सिर्फ रिप्लेस करना बाकी बचा, तो e raised to पहले 1 रिप्लेस करो, so e raised to minus s माइनस 0 रिप्लेस करेंगे तो e रेज टू 0 डिवाइड बाय माइनस s, प्लस यहाँ पे e रेज टू 1 माइनस s इंटू 4, क्योंकि t की जगह पे हमको रिप्लेस करना। ओके, सो 4 माइनस e रेज टू 1 माइनस s इंटू 1 है ना, डिवाइड बाय 1 माइनस s. इफ यू पुट हियर e रेज टू 1, e रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, देन व्हाटएवर यू हैव, दैट इज योर फाइनल आंसर. Okay, everybody, any doubt, any question? Online में? No doubt, sir. Okay, then we go for the next. Yes. Find Laplace inverse of 1 upon s plus 1, s plus 2. कैसे करेंगे? बोलो कौन सी? Sir, by partial fraction method. Partial fraction थोड़ा लेंदी नहीं होगा? सर वो a अपॉन प्लस b अपॉन वाला पार्शियल फ्रैक्शन इज गुड वे, है ना, वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू कैन डू अरेंजमेंट ऑल्सो. देखो डायरेक्ट अरेंजमेंट से बहुत ही इजी एग्जांपल हो जाता है, इसीलिए आपको दिया था कम मार्क्स में. सो यू कैन देखो क्या एडजस्टमेंट करना था, सिर्फ पहले s प्लस 2 माइनस s प्लस 1 कर दो. तो यहाँ पे देखो s माइनस s कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, है ना, तो यहाँ पे 1 था. अब नीचे तो एज इट इज रखा है. अब इसको हम कर सकते हैं a माइनस बी अपॉन सी. तो क्या लिख सकते हैं, a अपॉन सी प्लस सॉरी माइनस b अपॉन सी. तो उसमें से एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस यहाँ पे फर्स्ट वाला कैंसिल होगा, सो 1 अपॉन s प्लस 2. नाउ यू कैन स्प्लिट इट, दैट मींस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2. The formula for this one is e raised to minus t, and this one is for e raised to minus 2t. Okay, done. बहुत सिंपल था ना, पार्शियल फ्रैक्शन से लेंथी हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट भी होगा, है ना. तो आपको पहले इस बारे में भी सोचना है. इज इट ओके ऑनलाइन में? Yes, sir. ओके, जब भी कांस्टेंट का यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हो तो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन s को एडजस्ट नहीं कर सकते, है ना, तो क्योंकि s को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. बाकी कांस्टेंट को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यू कैन डू इन दिस वे आल्सो. नेक्स्ट वन, चलो ये तो हो गया. नेक्स्ट, लाप्लास ऑफ cos at माइनस cos bt डिवाइड बाय t. कैसे करेंगे? क्या हुआ सर? cos at माइनस cos bt तो f of t ले लेंगे. यस, वेरी गुड. पहले उसका लाप्लास करेंगे, बाद में वो इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी f of s ds वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. Very good. Okay, so we are using the division by t property. Okay, division by t property क्या बोल रही थी हमको? इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी करना है. Okay, that means आपको जो करना है यहाँ पे, उसको क्या करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at minus cos bt ds. Okay, that is the property, है ना. तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी यूज करके फाइंड करना है. तो यू कैन सी हियर. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी.
Laplace of cos 80 minus cos bt divided by t. It is nothing but integration s to infinity Laplace of cos 80 minus cos bt ds. अब यहाँ पे देखो cos 80 का क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, cos bt का s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना. अब 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेशन का एडजस्टमेंट हो जाएगा. कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ f x डिवाइड बाय fx dx. क्या हो जाता है? log fx. ओके, उसी का हमको यहाँ पे यूज करना. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी ऑनलाइन में? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्योंकि यहाँ पे इसका लॉग हो जाएगा, इसका भी लॉग हो जाएगा. अब लॉग a माइनस b को तो हम log a by b कर सकते हैं s to infinity. Now if you replace limit then you will get 1 by 2 minus of log s square plus a square divided by s square plus b square. That is your final answer. Okay, ऑफलाइन में कोई डाउट नहीं है ना? क्या कर रहा है तू? नेक्स्ट चलो क्वेश्चन 2b. लाप्लास इनवर्स ऑफ s plus 4 upon s s minus 1 s square plus 4. कैसे करेंगे? इसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन 6 मार्क्स में पूछा है, करना ही पड़ेगा ना, है ना. तो यहाँ पे क्या होगा? a upon s plus b upon s minus 1 plus CS plus D. yes cs plus d divided by s square plus 4. तो चलो यहाँ पे ये रहा आपका सॉल्यूशन. चेक कर लो. चलो ABC मुझे बताओ. चलो क्या आ रहा है? मेरे पास नहीं है ABC, मैंने नहीं किया है. A क्या आएगा? -1, B1, C0 and D -1. ओके, तो आपका आंसर आ गया. देखो, है ना? सही है ना ये? इज इट ट्रू? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो, आप ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं वेरीफाई कर लो. चलो मैंने एबीसीडी रखा था. यू कैन रिप्लेस इट देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर. यही आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? अगर यही आ रहा है. यही आ रहा है. ओके, अगर डिफरेंट आ रहा है तो 6 मार्क्स में से कम हो जाएगा. सही है ना? ए बी सी, हाँ बस यही. मैंने एबीसीडी नहीं फाइंड किया था, सिर्फ उसको एज इट इज रखा था और फिर उसके साथ मैंने सॉल्व कर दिया. अब एबीसीडी आप रिप्लेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1 प्लस ई रेज टू टी प्लस माइनस साइन 2t by 2. ओके ओके, चलो नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट. यस, दिस वन इज वेरी लेंथी. Laplace of e raised to -2t sin 2t cos hyperbolic t divided by t. अब इसको कैसे करेंगे? किसी ने किया है ये? कोई रिस्क नहीं लेगा. एनीबॉडी ट्राई फॉर दिस? है पर पहले cos HAT का करेंगे, उसके बाद में उसका लाप्लास करेंगे और बाद में वो e raised to t f of t वाला यूज करेंगे. हाँ, फर्स्ट शिफ्टिंग है ना? नहीं, Yes, ये तो थोड़ा लेंदी है. यहाँ पे आपको 3 चीज एक साथ करना है. पहले cos हाइपरबोलिक की फॉर्मूला रिप्लेस करना है. cos हाइपरबोलिक t इज इक्वल टू क्या होता है? e रेज टू t प्लस e रेज टू माइनस t डिवाइड बाय 2. अब इसको साथ में लेके इसके साथ उसको मर्ज करना है. उसके बाद फिर f ऑफ t लगाना है. तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है लेकिन वी कैन डू. तो यहाँ पे देखो आपका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है. देखो ये दोनों को पहले मैंने मर्ज किया तो e रेज टू -2t into cos हाइपरबोलिक t करूंगा, आई विल गेट दिस वन. देखते जाओ, आप वेरीफाई करो क्योंकि ये पूछ सकते हैं ना वापिस. ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं पूछ सकते. ओके, अब क्या किया है? फिर इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया न्यूमेरेटर में, है ना? अब ये sin 2t डिवाइड बाय t तो एज इट इज था.
अब ये दोनों को मर्ज करके मैंने ये रिप्लेस किया। अब इसको अगर आप स्प्लिट करेंगे तो वी हैव द लाप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to minus t into sin 2t divided by t plus 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to minus 3t sin 2t divided by t. Now we have the formula or property for the divide by t, है ना। सो उसके लिए क्या किया, इंटीग्रेशन s to infinity, ओके, और यहाँ पर भी s to infinity, और f of t के लिए मैंने इसको बनाया f of t, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to minus t sin 2t, और यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to minus 3t sin 2t. अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वन इज 2 upon s plus 1 whole square plus 4, और इसका हो जाएगा 2 upon s plus 3 whole square plus 4. Now you can integrate this. अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 2 कैंसिल करके, then whatever you have that is your final answer. Okay, everybody understand? अब इतना तो करना पड़ेगा, मैंने पूरा नहीं किया है, क्या स्टॉप कर दिया, करेंगे ना? एनी डाउट ऑनलाइन में? नो सर। No, sir. ओके, इस हिसाब से उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, नहीं तो दिस विल बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो ये कॉम्प्लिकेटेड आपका पूरा 1 घंटा ले लेगा तो पर भी सॉल्व नहीं होगा, है ना। अगर आपने सिस्टमेटिक नहीं किया है तो आपने अच्छा किया, इसको ट्राई नहीं किया, है ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3A। चलो 3A में यहाँ पे प्लस है, प्लस और यहाँ पे माइनस बीच में। इसका आंसर क्या आ रहा था ए एंड बी का? सर a is equal to 3. A is equal to 3 and B is equal to 4, यही आ रहा है निश्चल? सर एक्चुअली मेरा b फाइंड करना ही रह गया था। ओके ओके, देखो मैंने भी पूरा नहीं किया है, लेकिन आपको फ्लो बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कांस्टेंट ए एंड बी फाइंड करना है, बट दे गिवन दैट कर्ल ऑफ दिस वेक्टर इज 0, ओके, तो उसी से हमको स्टार्ट करना है। तो देखो यहाँ पे कर्ल ऑफ एफ बार इज इक्वल टू 0, तो आई जे के आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सॉल्व करना है। सो इफ यू सॉल्व दिस देन यू विल गेट ए इज इक्वल टू समथिंग एंड बी इज इक्वल टू समथिंग, ओके, सो दैट इज योर आंसर। एनी डाउट? किसी को डाउट है ऑनलाइन में? सर ओके, है ना, वेरीफाई कर लेना कि आंसर आ रहा है। ओके, सेकंड वन, ये तो क्लास में करवाया गया था, कॉपी पेस्ट था, है ना, पूरा कॉपी है, सिर्फ थोड़ा चेंज करके दिया है। क्या चेंज करके दिया है? वहां पे सिर्फ हमने वेलोसिटी किया था ना शायद, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ही फाइंड किया था। मैडम आस्क फॉर मैग्नीट्यूड, है ना, तो मैग्नीट्यूड में क्या करना है आपको? सर अंडर रूट में स्क्वायर। हाँ, दैट मीन्स वेलोसिटी वेक्टर जो भी मिलता है, यहाँ पे मैंने किया है कि नहीं पता नहीं। यस, दिस इज द फ्लो ऑफ द एग्जांपल। देखो आर बार आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। आपके पास एक्स वाई जेड, आपको एक्स वाई जेड दिया है, एक्स वाई जेड, है ना, उसमें से आर बार फाइंड करना पड़ेगा। सो यू फाइंड आउट आर बार, दिस इज योर आर बार। नाउ वी बार मीन्स d r bar by dt, that is your velocity vector. Then a bar means acceleration, so d square r bar by dt square. तो जो भी v आपका आया है उसका फीट से आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, ओके। सो आप फीट से डिफरेंशिएशन करेंगे, then you will get your a bar. Now they ask for the magnitude, so find out the modulus of v bar and modulus of a bar. That is your final answer. Okay, everybody understand? ऑनलाइन में? यस सर। यस सर। ओके, ये भी क्लास में करवाया गया था। द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट इन दिस स्पेस इज गिवन बाय T is equal to xy plus yz plus zx. Determine the directional derivative of T in the direction of vector 3i minus 4k at point 1 1 1. So what is the flow of this one? So you have to start with given T. कौन सा था ये? A का 3, yes. So you have to start with given T. Okay, आपको T से स्टार्ट करना है। So T is equal to क्या दिया है यहाँ पे? xy plus yz plus zx.
नाउ फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ दिस. सो डेल टी आपको फाइंड करना था. डेल टी मीन्स क्या होगा? डेल टी बाय डेल एक्स आई, डेल टी बाय डेल वाई जे, डेल टी बाय डेल जेड के. ओके, सो डेल टी बाय डेल एक्स मीन्स क्या होगा इसका? y प्लस जेड, आई प्लस यहाँ पे होगा x प्लस जेड जे, और यहाँ पे होगा x प्लस वाई के, या फिर y प्लस एक्स. ओके, अब ग्रेडियंट मेरे पास है. दिस इज योर ग्रेडियंट ऑफ t. नाउ वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में पहले आपको b फिक्स करना है. सो व्हाट इज योर b? b is the given direction, है ना? 3i minus 4k. So 3i minus 4k. Now you have the also yes given point. सर पहले हाँ सर वही ग्रेडियंट तो पहले T1 पॉइंट पे फाइंड yes at point 111 फाइंड करना पड़ेगा. So यहाँ पे हो जाएगा 2i plus 2j plus 2k. Now डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? फॉर्मूला डेल टी एट 111 इंटू बी कैप, नॉट बी बार. ओके, एक्चुअली दिस वन इज डेल टी 111 इंटू बी बार डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी बार. सो यहाँ पे आप दोनों को रिप्लेस करो. सो 2i प्लस 2j plus 2k into b bar. b bar means 3i minus 4k divided by square root of 9 plus 16. चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा? तो यहाँ पे 3 into 2 that means 6. यहाँ पे minus 4 into 2 minus 8 divided by root 25. So here we have minus 2 by 5. Yes or no? Yes sir. Okay, so this is your solution of the next. Okay, now call up a bar. चलो इसका आंसर तो बता सकते हो. 2x क्या होगा? 2x plus j के. ओके, उसमें 102 रिप्लेस करना बाकी है. ओके, तो कॉल ऑफ ए बार आएगा 2x plus 2j. अब उसमें आपको पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है. दैट मीन्स 2 into 1, that means 2 plus 2 into j. So your final answer is 4j. Yes or no? Everybody? Yes sir. इसमें 1 मार्क्स चला गया है ना. देखते हैं कितने कटोगे. सर जे लिखना रह गया. क्या? जे लिखना रह गया. जे लिखना रह गया तो भी काटा जाएगा. 0.5 देखते हैं काटना तो पड़ेगा ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3b. ओके, यहाँ पे गलती से 2 आ गया है. 3b क्या होगा? चलो 2b का 1 कैसे सॉल्व करेंगे? कोई बताएगा मुझे? आई थिंक ये एक्सरसाइज में दिया था, होमवर्क में. देखो ये चैप्टर के होमवर्क में मैंने दिया था आपको, है ना? सॉल्व किया होगा तो आएगा आंसर. दिस इज इन होमवर्क. अगर आपको देखना है तो दिखा देता हूं मैं. मेरे पास तो है ही. कौन सा लेक्चर था वो? यस, लास्ट वाला, 9. देखो इसमें हमने जो होमवर्क था ना, उसमें ये एग्जांपल हमने दिया था. नहीं है ये था, देखो. लेकिन इसकी जगह पे सिंपल फॉर्म आपको दे दिया है, y प्लस जेड वाला दिया है. तो हमने सॉल्व कौन सा किया? यस, वाई जेड वाला किया. यस, तो यहाँ पे देखो यही एग्जांपल था, सिर्फ थोड़ा आपको वेक्टर चेंज करके दिया है. देखो, इज द मोशन इरोटेशनल, है ना?
इफ सो देन फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन। यहाँ पे जो वेक्टर है वो आपको बहुत सिंपल दे दिया है, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स एंड y प्लस एक्स। तो इसका पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कॉल, है ना। कॉल ऑफ वी बार ए बार 0 है कि नहीं चेक करेंगे। आपको फर्स्ट स्टेप होगा कॉल ऑफ ए बार इज इक्वल टू 0। अब कॉल ऑफ ए बार इज इक्वल टू 0 मिलता है तो आपको ई रोटेशनल है ऐसा आपको बोलना है, मोशन इज ई रोटेशनल। ओके, अगर ई रोटेशनल है देन यू गो फॉर द स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल के लिए क्या करना है, ए बार इज इक्वल टू डेल इनटू स्केलर। इफ यू टेक 5 you can take u also. So by this you can solve and find out the value of phi of x y z। आपको phi of x y z find करके देना। Is it okay? है ना, clear? अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। नहीं है, नहीं है। ओके, सॉल्व किया हुआ नहीं है मेरे पास, नहीं तो आपको दिखा देता हूँ। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन, evaluate integration over f bar dr bar where f bar is equal to x square plus y square I minus 2xyj and c is the rectangle in xy plane bounded by y is equal to 0, x is equal to a, y is equal to b, x is equal to 0। ये तो ऑलरेडी करवाया गया है क्लास में, है ना। अगर आपको 6 मार्क्स लेना था तो सीधा आपको वही से लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आई थिंक सेकंड लेक्चर में था। यस दिस वन देख लो आप, है ना, वही का वही पूरा। और मैंने ये शेयर भी कर दिया था, तो इस हिसाब से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। आपको O to P जाना पड़ेगा, P to Q, Q to R एंड R to O। तो यहाँ पे जो वर्क डन है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 डिफरेंट लाइंस। इंटीग्रेशन ओवर OP f bar into dr bar, इंटीग्रेशन PQ f bar into dr bar, integration QR f bar into dr bar, integration RO f bar into dr bar। You have to find out 4 line integral and then add it। Okay, add, उनको ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने किया था 1 2 3 4, उसके बाद आपका आंसर आएगा -2ab²। सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर? एनीबॉडी? एनी डाउट? No, sir. Okay, so this is about today's session. So we stop here. So is there any doubt, any problem, any question? Anybody related to unit test 1? आपको है किसी को पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं? Okay, so good day, take care everybody. Yes Vijay, any question बेटा? No, sir. Okay.